Welcome students. Today we will discuss group by clause in SQL. It is one of the most interesting topic in DBMS. So group by clause. What is the use and what it exactly is? It combines all those records that have identical values in a particular column. Okay. It means you have duplicacy in that column. Okay. You will have some duplicate values in a column. On the basis of that duplicate values, you make group in that column. It enables SQL aggregate functions for grouping of information. Again, it is used with a select statement to arrange identical data into groups that I said earlier. So it is used whenever aggregate function by group are required. For example, consider a scenario in which different you have some set of balls or some set of objects and you want to make a group, but suppose these balls are of same color, so you cannot make group in this scenario. Consider the second one. In this scenario, every ball have different color, so again you will not be able to make a group in this scenario. Let's consider the third one. In this, you have 8 balls, sorry, you have 10 balls, and some are repeating. There are 4 blue color balls, 3 green color balls. Okay, so you can make group like this: group of 4 blue balls, group of 3 green balls. So here grouping can be possible. Group by clause also plays in the similar manner. ग्रुप बाय क्लॉज एक कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज के बेसिस पे टपल्स की ग्रुपिंग कर देता है. ठीक है, टपल्स के सेट बना देता है, ग्रुप बना देता है, और उन ग्रुप पर जो है वो हम फंक्शन, जो हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन थे, कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन थे? सम, एवीजी, मैक्स, मिन, ये सारे फंक्शंस जो हैं, काउंट, ये फंक्शंस हम लगा सकते हैं. तो अब हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पे इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ग्रुप बाय क्लॉज जो है वो यूज किया जाता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक नंबर का क्वेश्चन ग्रुप बाय क्वेरी लिखने के लिए हमेशा पूछा जाता है. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज फार एज योर वाइवा इज कंसर्न. सो लेट अस कंसीडर ए टेबल stud, and suppose it is having 3 columns: name, class and price. I have put some dummy records in it, and if I apply aggregate function to know the sum of total price, then how I'll write the query: select sum price from stud. So you will get the output. अगर हमें ये जो यहाँ पर दिया हुआ है प्राइस, अगर हमें जो है वो ये प्राइस जो है वो, इस प्राइस को जो है वो अगर मान लो इन सारे का सम निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से एग्रीगेट फंक्शन जो है इसका इस्तेमाल कर लेंगे. ओके, नाउ कंसीडर ए सेकंड क्वेरी in which you want to sum only those record having class equals to 12. जो क्लास 12 है उसके सारे जो प्राइस हैं उनका सम निकालना. तो यू कैन सिंपली राइट सेलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम स्टड वेयर क्लास इक्वल्स टू 12. लेकिन यहाँ पर जो है इस क्वेरी में क्या हो रहा है कि सिर्फ क्लास 12
जो है इसके ही जितने लोग हैं, 12 के कौन से हैं, अमृत, नमन और वीना, तो इन तीनों का जो है वो क्या करेगा, सम निकाल देगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 10th के सारे लोगों का सम हो जाए प्राइस का, 11th के सारे प्राइस का सम हो जाए और 12th के सारे प्राइस का सम हो जाए। मतलब ये कि आप जो है वो क्लास वाइज क्या चाह रहे हो, प्राइस का सम चाह रहे हो। तो उस केस के अंदर आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम स्टड ग्रुप बाय क्लास। ठीक है, तो इसकी जो आउटपुट है वो ये आ जाएगी। इसको ध्यान से देख लो। Here you are getting class wise sum. Okay. So let's have another example. And before doing the next example, I would like to discuss having clause also. In the previous slide, you are grouping the records on the basis of class. Okay. आपके पास जो है वो जो स्लाइड थी उसके अंदर जो है वो क्या था कि क्लास 10th थी, 11th थी और 12th थी, और आप उनके बेसिस पे जो है वो क्या कर रहे थे, टपल्स के ग्रुप बना ले रहे थे। और उन पे जो है वो आपने एक कंडीशन लगाई थी कि आपको प्राइस का सम चाहिए। जब ग्रुप बाय क्लॉज यूज करते हैं तो अगर हमें जो भी रिजल्ट मिल रहा है ग्रुप्स में, अगर उन पे कंडीशन लगानी हो तो हैविंग का यूज किया जाता है। ओके, तो ग्रुप बाय के साथ हैविंग यूज होता है और जो है वो नॉर्मल केसेस में हम वेयर यूज करते हैं। ओके, तो we can say that having clause is used to place condition on groups created by group by clause. Again consider this table studs, and what I want grouping of class. I want sum of each group of class where count is greater than 2. What does it mean? कि मुझे जो है वो पहले तो क्या करना है, क्लास वाइज ग्रुपिंग करनी है, और उस ग्रुप का जैसे 12th जो है इसका एक ये हो गया अमृत, एक नमन हो गया, एक वीणा हो गई। तो इन तीन की ग्रुपिंग करनी है, और इन तीनों की ग्रुपिंग करने के बाद ये तीन है, इनका काउंट कितना है, 3। ऐसे ही 11 वाले का देखें अगर हम काउंट, तो अमन और उसके बाद गीता, तो इसका काउंट कितना है, 2। फिर 10 वाले पे आ जाते हैं तो अनु एक, फिर इसके बाद जो है वो सेकंड नंबर पे क्या है, 10 निशा, और थर्ड जो है वो बीना। तो 10 वाले कितने हैं, 3, 12 वाले 3 हैं, 11 वाले 2 हैं और 10 वाले 3 हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कंडीशन ये देनी है कि हमें सिर्फ उन्हीं का काउंट दिखाना है जहां पर जो ग्रुप में रिकॉर्ड आ रहे हैं उनका जो काउंट है वो 2 से ज्यादा है। तो यहां पर जो है वो इसने एक जो है वो दिखा दिया 12th वाले का और एक दिखा दिया 19 वाले का। ठीक है, नाउ अगेन I'm discussing one question. Show those class and class wise sum of each class where the total sum price of each group is greater than 1800। अब ये कह रहा है कि ग्रुप वाइज जो है वो पहले तो हमें क्या करना है कि प्राइस निकालनी है। जैसे 12th में टोटल सम कितना है वो निकाल लो, ऐसे 11 में टोटल सम कितना है वो निकाल लो, 10th में टोटल सम कितना है प्राइस का वो निकाल लो। और उसके बाद कैसे शो करो, क्लास आए, फिर जो है वो क्या हो, क्लास वाइज प्राइस का सम आए, लेकिन किन का आए, जिनके
सम प्राइस जो है वो 1800 से ऊपर है। तो इसमें क्या क्वेरी आएगी? सेलेक्ट क्लास कॉमा देखिए सम प्राइस। तो ये क्या करेगा, जैसे क्लास 12 है तो क्लास 12 के सारे का प्राइस जो है वो यहाँ पे कर देगा फ्रॉम स्टड ग्रुप बाय क्लास, जिससे हमें ये इफेक्ट मिलेगा। अब इसके ऊपर हमें कंडीशन एक और दे देनी है। अगर हम यहाँ तक जो है वो लिखते तो आप देखोगे यहाँ पर जो है वो हमें क्या होता है, 12th का भी जो है वो शो हो जाता है, 10th का भी शो हो जाता है और 11th का भी शो हो जाता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो 11th वाला ग्रुप है, 11th वाली क्लास है, उसमें अगर हम देखें तो 2 ही रिकॉर्ड है, ठीक। और दूसरा जो है वो हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि जो 12th का ग्रुप बना उसके प्राइस का सम निकाल लें, जो 11th का ग्रुप बना उसके प्राइस का सम निकाल लें, जो 10th का ग्रुप बना उसके प्राइस का सम निकाल लें, और ये सम प्राइस तीनों में से देखें कि किसका 1800 से ऊपर है, and will display those records only. So what will be the output? This is the output. 10th जो है, 10th वाली जो क्लास है, इसका जो है वो कितना आ रहा है, 16 प्लस 800 प्लस 800 प्लस 500, ठीक है। और जो 12 वाला है इसका कितना आ रहा है, 500, 600 कितना हो गया, 1100 और 1900। तो ये दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं, उनका यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले आ गया, ठीक है। 11 का देख लेते हैं। 11 में एक जो है वो टपल है, इसमें 500 है, दूसरे टपल में 900 है, तो इसका टोटल कितना हो गया, 1400। तो यहाँ पर जो है वो 11 वाला जो ग्रुप है इसका जो सम प्राइस है वो 1400 है, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट शोन इन द टेबल। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि जो हैविंग है वो क्या कर रहा है, ये जो ग्रुप बनकर आए हैं इन पर अगेन कंडीशन जब हमें देनी है उसके लिए यूज हो रहा है। इसी तरीके से अगर जो है वो आपसे एक क्वेश्चन और किया जाएगी, शो क्लास एंड क्लास वाइज मैक्सिमम प्राइस वेयर मैक्सिमम प्राइस शुड बी लार्जर देन 800। तो ये भी बिल्कुल वैसी ही क्वेरी है जैसे पहले थी। हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट क्लास मैक्स प्राइस फ्रॉम स्टड ग्रुप बाय क्लास। तो इससे क्या होगा, जैसे मान लो 12th है, 12th में एक है 500, एक है 600, एक है 800। 500, 600, 800 12 का ग्रुप है, तीन अलग अलग जो है वो उसके अंदर क्या आ रही है, प्राइस आ रही है, मैक्सिमम क्या है 800। तो यहाँ से जो है क्लास 12 के लिए 800 सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसी क्लास 11th के लिए क्या है, एक में जो है वो 500 आ रहा है, दूसरे में 900 आ रहा है, तो इसके अंदर इस ग्रुप के अंदर मैक्सिमम क्या है 900, ठीक। तो यहाँ से 900 सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 10th है, तो 10th के लिए जो है वो आपको क्या होगा, 10 में एक जो है 800 है, फिर 800 है और 500, तो इसमें मैक्सिमम प्राइस क्या है 800। तो अब यहाँ पर जो है वो हमारा क्वेश्चन ये है कि पहले तो हमें क्या करना है कि क्लास वाइज मैक्सिमम प्राइस निकाल लेना है, जो कि इतने हिस्से से हमको मिल जाए क्लास वाइज मैक्सिमम प्राइस। और जहां पर ये 800 से ऊपर हो, तो 800 से जहां पर ऊपर है वो कौन सा हुआ, सिर्फ क्लास 11, ठीक है। क्योंकि अगर क्लास 12 का ग्रुप देखो तो अमृत का 500, नमन का 600 और वीना का 800। तो ये सारे जो हैं वो 800 या उससे नीचे हैं, ज़्यादा नहीं है। ऐसे ही 10th में भी जो है वो आप देखो तो यहाँ पर अनु का 800, निशा का 800 और वीना का 500। तो ये भी सब 800 या उससे नीचे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है वो 11th वाला जो केस है, जैसे 11 में एक में 500 है और एक में 900 है, ये 900 जो है वो 11 वाली जो कैटेगरी हो गई, जो 11th वाले रिकॉर्ड्स का ग्रुप हो गया, उसके अंदर जो है वो एक रिकॉर्ड ऐसा है जिसकी मैक्सिमम प्राइस जो है वो 800 से ऊपर है, दैट इज व्हाई इट इज शोन हियर। ओके, तो अब जो है वो और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि हैविंग जो है वो आपको अच्छे ढंग से अप्लाई करना आना चाहिए।
अब यहाँ पर जैसे इसी टेबल में हमने लिखा अगर कि सेलेक्ट क्लास एवरेज प्राइस मैक्स प्राइस फ्रॉम स्टड ग्रुप बाय क्लास हैविंग क्लास इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमें क्लास दिखाओ, एवरेज प्राइस दिखाओ, मैक्स प्राइस दिखाओ, लेकिन किस क्लास की दिखानी है? क्लास 12 की दिखानी है। ठीक है, ग्रुप बाय क्लास यहाँ तक जो है वो, अगर यहाँ तक हम सिर्फ लिखते हैविंग ना लिखते तो ये क्या करता है, ये तीनों का एवरेज और मैक्स दिखाता है। लेकिन जब हमने ये हैविंग लगा दिया तो इसने क्या किया, इसने सिर्फ 12 जो है क्लास का जो ग्रुप है उसके अंदर जो एवरेज और जो मैक्सिमम प्राइस है उसको डिस्प्ले किया है। इसको बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, हम इन ऑपरेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा सेलेक्ट क्लास मैक्स प्राइस फ्रॉम स्टड, स्टड इज द टेबल नेम, ग्रुप बाय क्लास। तो अभी अगर यहां तक की क्वेरी देखें अगर हम, तो ये क्या करेगा, ये क्लास 12 क्लास 11 और क्लास 12 में जो मैक्स प्राइस है उतना दे देगा। लेकिन हमने आगे और एक कंडीशन जोड़ दी, हैविंग क्लास इन। इन जो है वो एक ऐसा कीवर्ड है जो 11 और 12 अगर हमने इसमें दे दिया तो एग्जैक्टली जिसका 11 होगा और जो 12 होगा सिर्फ उनको जो है वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यहां पर अगर हम लिखते वेयर क्लास इक्वल्स टू 11 एंड क्लास इक्वल्स टू 12, तो उसका जो एंड ऑपरेटर का रिजल्ट आता, वो रिजल्ट जो है वो एग्जैक्टली हम इससे इन ऑपरेटर से भी जो है, इन कीवर्ड से भी जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो हैविंग के साथ हम इनका यूज भी कर सकते हैं। आप इनको सेपरेटली एक बार देख लेना और फिर देखो उसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ।